हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जीआईसी से रहा कोई? बच्चे आपके पास माइक है? हाय, गुड मॉर्निंग। बच्चे अपना नाम बताना मुझे। जीआईसी से रहा कोई? मैम जीवन। थोड़ा तेज बोलो। मैम जीवन है। जीवन, ओके। जीवन, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? 10th। पहली क्लास है आपकी है? ओके, ऑलराइट, सिट डाउन। सो जीवन, टुडे वी लर्न अबाउट टेंसेस। ठीक है, आपको जहां भी कुछ डाउट आएगा, मेक श्योर दैट यू आर रेजिंग योर हैंड और यू आर राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो चैट बॉक्स पे लिख देना या अपना हैंड रेज कर देना। ठीक है, ओके, गुड। जीआईसी जयंती कोट, बबली, मानवी, दृष्टि। आज मुझे तुम लोग के नाम याद है। चलो, गेट अप, टेल मी व्हाट डिड वी लर्न यस्टरडे। गेट अप, एनी वन ऑफ यू, हरी अप, एनी वन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चे। हाउ वाज योर डे यस्टरडे? Very well. Very well. Oh, all right. And what did you do yesterday? Present continuous tense. हाँ, ये तो हमने याद किया था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्या किया कल? हाँ? What did you do yesterday when you went back? Schedule बताना. हाँ, किस शेड्यूल मत बताओ, ये बता दो बस कि कल जाके घर जाके क्या किया। I went to home from I school. went to the home. Yes, okay. Then I freshes up. you freshened up. Very good. You remember freshening up? The word very good, but it is I freshened up. Then, then what did you do? Then I ate lunch. Hmm. Then you ate lunch. Very good. And then I sleep 2 hours. Then you slept for 2 hours, or you can say that you took a nap for 2 hours. Then Af- After that I did homework. you did your homework. Okay. कौन सा homework? Holiday homework? Yes, ma'am. Okay, all right. Then Then I go to walking. you went for a walk. Then I come home. Came home. Tenses. Come is present. Came is past. Then I did Then some exercise. then you exercised. Very good. What do you do when you exercise? Or exercising का अलग दूसरा term भी होता है. It's called working out. Then I worked out or I exercised. Okay. Then After that I study. you studied. Studied. Tenses गलत हो रहे हैं, ऐसे नहीं करना है. हाँ, फिर Then I made a cup of tea.
Made a cup of tea. Okay, very good. Then I cooked dinner. you cook dinner also. After you exercise, you have the Yes, ma'am. energy to cook dinner also. Yes, ma'am. Very good. I exercise for like one time and then for straight 2 days I don't do anything. You exercise daily and then you're cooking also. It's very commendable. Then I used my phone. you used your phone. Okay. Very honest. Very good. I ate a dinner. You ate the dinner. Okay. Very good. Then I I watched you dances. you washed tenses also. Yes, ma'am. Okay. All right. I go to sleep. Then you went to sleep or then you slept. Sleep is present tense. Slept is past tense. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, good. Clap. Clap for her. Jeevan, you also clap. Yes, very good. Yeah, sit down. But take care of the tenses, ठीक है? Thank you, ma'am. No Yes, present ma'am. tense when we are talking about yesterday. Okay, sit down. And did you get your worksheet? No, ma'am. Why? You didn't the WhatsApp on the number which was shared with you. No, ma'am. आपके पास वो नंबर है मैंने जो दिया था? No, ma'am. अच्छा, मैं आपको नंबर दोबारा दे दूंगी, आप वर्कशीट ले लेना, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, sit down. All right, Jeevan, would you like to try telling us about what you did yesterday? Jeevan, can you hear me? Try speaking something in the mic. हाँ जी, अभी बोलो बोलो बच्चे, आप कौन सी क्लास में हो? 10th. 10th में हो। तो आप अभी हमने ये एक्टिविटी करी जिसमें अभी हमें दृष्टि ने उसके कल जो उसने किया था उसके बारे में बताया, राइट? कल मतलब पास्ट टेंस जो उसने पास्ट में किया था। तो वुड यू लाइक टू ट्राई? आप एक बार मुझे बताओगे आपने क्या क्या किया? व्हाट इज योर स्केड्यूल? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल द एंड? कुछ भी जितना भी आपको आता है, यू ट्राई एंड देन वी विल फॉर्म सेंटेंसेस अबाउट इट. This is what we do in the class every day. Every day we select a topic, उसके बाद we talk about it. तो पहले would you like to give me your introduction? Introduction मतलब अपने बारे में बताना. आप मुझे अपने बारे में बताओगे? आप कहाँ रहते हो? आपके फैमिली में कौन कौन है? आपके हॉबीज, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपको बड़े होकर क्या बनना है, आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हो? Can you tell me all these things? बच्चे, what happened? Try speaking on the mic. आप बैठ जाओ, ठीक है? हम देखते हैं आपका माइक क्यों नहीं वर्क कर रहा है, मैं थोड़ी देर में आपसे पूछती हूँ. ओके, ऑल राइट गाइस, कल वी लर्नड अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट सिंपल, है ना? याद है कि भूल गए? रेज योर हैंड्स. गुड. ओके, सो कल हमने पढ़ा था पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं उनके बारे में हम कैसे बात करते हैं. एंड आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट में जो चीजें हो रही थी, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में बात करना. पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो चीजें आपकी पास्ट में हो रही थी उसके बारे में बात करना. जैसे अगर मैं बोलूं कि आई वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी 2 months ago, तो दैट इज पास्ट टेंस.
देखो हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था, आई वर्कड इन दिस कंपनी 2 months अगो, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, सबको आता है। अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करनी है, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअस चीजें जो चल रही हैं, तो पास्ट में जो चीजें चल रही थी उनके बारे में बात करना। आई वॉज वर्किंग इन दैट कंपनी 2 months अगो, ठीक है, आई वॉज शॉपिंग एट दैट प्लेस अर्लियर, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं इनको हम बोलते हैं आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आया? ओके जीवन, कहीं भी कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है, आपके स्क्रीन में ऑप्शन है चैट बॉक्स का, या फिर हैंड रेज कर देना, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वॉज या वर, तो हमको पता है कि वॉज वर लगता है, इसको नोट कर लेना। जीवन आपके पास नोटबुक है? नोटबुक दिखाओ। गुड, ओके, हाँ तो इसको नोटबुक पे नोट कर लेना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें पहले से पता है हम पास्ट टेंस में वॉज या वर यूज करते हैं, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, आई, यू, मी, दे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें पता है, मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगी, सब्जेक्ट मैंने बहुत बार बताया है। क्या होता है सब्जेक्ट, मानवी क्या होता है सब्जेक्ट? तब तक ये फॉर्म नोट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक मिनट, हाँ आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ क्या होता है सब्जेक्ट? आई यू वी दे। ये तो एग्जाम्पल्स हो गए, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है बच्चे? जहाँ पे हमारा नाम आए। वेरी गुड, यू आर क्लोज, बट सब्जेक्ट होता है जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई एम वॉकिंग तो मैं सब्जेक्ट हूं। अगर मैं बोलूं कि मतलब पूरी स्टेटमेंट में जिस भी नेम, प्लेस, एनिमल, पर्सन, जिस भी नाउन की बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ आप सब्जेक्ट हो, अगर आप अपने स्केड्यूल के बारे में बता रहे हो आप सब्जेक्ट हो, ठीक है। इसके तो हमने नोट्स बनाए थे, अपने नोट्स में देखो आपने लिखा होगा, ठीक है, बैठ जाओ। प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर। वॉज वर हमने पहले भी पढ़ा है पास्ट टेंस में, वॉज इज योर सिंगुलर, वर इज योर प्लूरल। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अभी तक हमने सिंपल सिंपल पढ़ा था, पास्ट टेंस में ईडी यूज होता है, प्रेजेंट में आपका आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है, फिर फ्यूचर में आपका विल यूज होता है। अभी तक हमने सिंपल सिंपल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़ा था, है ना। बट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, इंग्लिश में एक सेंटेंस को बहुत ज्यादा तरीकों से बोल सकते हैं, तो आप बहुत सारे तरीकों से तभी बोलोगे जब आपको, अब आपको 3 तरीके से तो पता है कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। आई वर्कड, I did my homework, I am doing my homework, I will do my homework. सिंपल 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 ये पता है, ठीक है। अभी हमारा पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, वो हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पास्ट सिंपल पढ़ा, जो पास्ट सिंपल सिंपल पास्ट टेंस होता है, ईडी फॉर्म लग जाती है या फिर रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब, है ना। रेज योर हैंड्स, याद है कल इतना सारा पढ़ा था? हाँ तो अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग थिंग्स और सेइंग थिंग्स विच हैपेंड इन द पास्ट टेंस। अगर मैं बोलूं कि आई वर्कड इन अ कंपनी 2 months अगो, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। अगर मैं बोलूं आई वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी 2 months अगो, दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज आई यूज द आईएनजी फॉर्म इन विद वर्ब, ठीक है। I was singing at the concert, ing फॉर्म। इसको लिख लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सब्जेक्ट प्लस was और were। नवीन नोट इट डाउन,
Was is for your singular, were is for plural, प्लस वर्ब की ing फॉर्म. ना जीवन, आपको पता है सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं? रेज योर हैंड. सिंगुलर आपका एक इंसान या एक चीज होती है, कोई भी एक चीज जिसके बारे में हम बात करें. जीआईसी जयंती कोड सिंगुलर प्लूरल पता है? ओके गुड. एटलीस्ट 3 बच्चों को तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. सिंगुलर होता है एक चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी सिर्फ एक चीज, सिंगल, सिंगुलर. ठीक है, अगर सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रही है तो मैं बोलूंगी वॉज, क्योंकि वॉज सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है. अगर दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है तो हम बोलेंगे वर, क्योंकि वर यूज होता है प्लूरल के लिए. ये पास्ट टेंस के लिए है. अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो क्या बोलते हैं हम? बबली. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चे. इसका प्रेजेंट टेंस क्या है? वॉज का प्रेजेंट क्या है? इज. वेरी गुड. एंड वर का प्रेजेंट क्या है? वर का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है? Where का? वर का Has. दे वर Has. डूइंग समथिंग. आर. वेरी गुड. सिट डाउन. Sit down. Yeah. So was and were is past tense. Present tense में it will be is and are. तो past continuous में हम subject करते हैं plus was या were for singular and plural और plus verb की ing form. ing form is play का playing, work का working, lie का lying, जो कल हमने e और ie rules पढ़े थे. See, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इट्स नॉट विजिबल बिकॉज बहुत छोटे फॉन्ट्स हैं. जीआईसी तलवारी में कोई बैठा है स्टूडेंट? जीआईसी तलवारी, रेज योर हैंड. ओके गुड. इज दिस योर फर्स्ट क्लास? कैन यू प्लीज टेक द माइक? यस. इज दिस योर फर्स्ट क्लास? No, ma'am. ओके. व्हाट इज योर नेम? Khushbu. Khushbu. All right. So Khushbu, how many class have you attended? आपने कितने क्लास अटेंड किए इससे पहले? Ma'am, 12. Okay. Have you talked earlier? Yes, ma'am. Okay. Do you know about tenses? Yes, ma'am. All right. So are you getting what we are learning here? Yes, ma'am. Okay. And at the end of the session, would you be able to tell me about your schedule or what you did yesterday? Yes, ma'am. Okay. All right. Sit down. So Thank you, ma'am. this is one, conversation between Katie and Ben. आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा है. I'll read it to you. I'll read it for you. इसमें sentences हैं जो past continuous में है. आपको समझ आ जाएगा हम past continuous में कैसे convert करते हैं sentences. ठीक है? Katie, is your home busy or peaceful? Ben, well, this morning when I woke up, my wife was singing. My wife was singing in the kitchen. My wife was singing. यहाँ देखो, wife subject है, singular है. Was जो हमने रूल पढ़ा है, सब अपने नोटबुक्स पे देखो जो हमने रूल पढ़ा है. सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से was या were, एंड वर्ब में ing फॉर्म. My wife is the subject. सिंगुलर है तो was प्लस वर्ब की ing फॉर्म. My wife was singing. अब समझ आया कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस फॉर्म होते हैं? अभी हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे. रेज योर हैंड्स. खुशबू, डिड यू गेट इट?
Okay, all right. This morning when I woke up, my wife was singing in the kitchen while my son was watching TV. Again, son subject was because singular है और verb की ing form. And my dog was barking, so it was quite noisy. Dog subject was and verb का ing form. I'm sure you were singing too. You love singing. You were singing too. No, I was not singing. Wasn't is was not singing. I was putting the dog in his kennel. Was putting. I subject hai. Was putting ing form. My home was quiet this morning because everyone was sleeping when I left. They were snoring though. Snoring is karate marna. Snore is karate. ठीक है? Were they playing computer games until late last night? Yes, they were. That's why they were tired this morning, I think. Is your home busy or peaceful? अब मैं आपको ना सुना देती हूँ एक बार कॉन्वर्सेशन, ठीक है? Is your home busy or peaceful? Well, this morning when I woke up, my wife was singing in the kitchen, while my son was watching TV, and my dog was barking. So it was quite noisy. I'm sure you were singing too. You love singing. No, I wasn't singing. I was putting the dog in his kennel. My home was quiet this morning because everyone was sleeping when I left. They were snoring though. Were they playing computer games till late last night? Yes, they were. That's why they were tired this morning, I think. Don't worry, it's exactly the same in my house. My kids are crazy about computer games. It's almost an addiction. Talking about your house, I noticed when I was visiting the other day that you have a lot of family photos everywhere. Yes, we like taking lots of photos on holidays and family occasions like birthday parties. Don't you? Oh, yeah. Okay, all right. So this is how we turn our sentences into past continuous. Past और past continuous में क्या चीज डिफरेंस है? Past continuous मतलब जो चीज past में हो रही थी, ठीक है? वो ऐसे continuous motion में थी. जैसे ये था कि my wife was singing, तो past में वो गा ही रही थी. बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो वाली चीजें होती हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रही होती हैं उस टाइम पे, ठीक है? इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना. जीआईसी बंदिया, जीआईसी बंदिया, रेज योर हैंड्स. आपकी पहली क्लास है बच्चे? आज मुझे इतने सारे नए नए स्कूल्स दिख रहे हैं. ओके, I want खुशबू लगा दो आप. Yes, खुशबू. GIC बंदिया, I'll get back to you in a while. खुशबू, बच्चे, can you please take the mic for me? Yeah, so we learned about how to form words in present past continuous. Did you understand it? Yes, ma'am. Okay, now I want you to do this activity with me. What is your home like in the morning? Or what was your home like when you left your home today morning? Okay, I can talk about my home first. So when I left my home, my mother was cooking something. I don't know what she was cooking. She has been very much indulged in, trying new recipes these days. So when I left my home, my brother, he was drinking his coffee. He was having his coffee. My mother was cooking something. I don't know what experiment is going on in my house today. ठीक है, my father, he already left for his job. He was getting ready to leave for work. My brother, he was drinking his coffee. I got ready. My mother was cooking something. So, and yeah, my brother was playing some music. So that is how you describe. Okay, this is all in past continuous. Mother was cooking. Was, mother, subject, singular, verb ka ing form. Brother was drinking coffee. Brother was drinking ing form. Okay? Now I've given you example about my house. Now you can explain things. Chalo Khushbu, start.
When I was left my home, my mother When I was cooking. leaving, बच्चे. You say when I was leaving. Yes, ma'am. ing फॉर्म लगानी है ना past continuous में. When I was leaving my home, my mother was cooking. My हम्म. two younger sisters was हम्म. watching TV, Were and watching. my Sisters father है ना. एक minute, sorry, I'm so sorry to interrupt you, but sisters is plural, so you will use were. Sisters were watching TV. yes, ma'am. Okay, say My it. father was my father was sleeping. Okay, that's it. You want to add something else? No, ma'am. Okay, all right, sit down. Thank you so much. अभी समझ आया सबको कैसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब में कन्वर्ट करते हैं? चलो दृष्टि, यू टेल मी व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हाउस. दृष्टि मुझे बोलेगी सारा घर के बारे में बताओ, ये सब कुछ मुझे बोल देते हैं बताने को. चलो दृष्टि. जीआईसी बंदिया, इसके बाद आई विल आस्क फ्रॉम यू पीपल. You'll have to tell me what was going in your house when you left your house or when you were leaving your house. ठीक है? Take the mic, GIC बंदिया, तब तक mic arrange कर लो. हाँ जी दृष्टि. What was going on in your house? मॉर्निंग का बताना. हाँ जी बच्चे, मॉर्निंग का बता दो. Say when I left the house or when I was leaving the house. Then when I woke up, When you woke up, yes. my mother cooking food. My mother was cooking food. My mother is the subject, was and then verb का ing form. We learned the form right now. अभी है ना? Was skip मत करो. My mom was cooking the food. उसके बाद My father was ready for office. my father was getting ready for office. ठीक है? Yes, ma'am. फिर My brother playing badminton. was. देखो. My brother was playing Was badminton. playing. हाँ. सुबह yeah, very fit. All of your families are very fit. People are exercising. Then people are playing badminton early in the morning. Very good. हाँ चलो. फिर that's it. Yes, ma'am. Okay, all right. Now you know the difference between past simple and past continuous. अगर past simple में होता तो ऐसे होता कि my mom cooked a meal. बट आप जब आए तो आपकी मॉम कुक कर ही रही थी ना, पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ था. शी वॉज कुकिंग. तो जब आप आ गए, जब आपके लिए कोई चीज पास्ट टेंस में हो गई, किसी और के लिए वो प्रेजेंट टेंस में ही चल रही थी. शी वॉज कुकिंग. दैट्स वाई वी यूज कॉन्टिन्यूअस. अगर आप ऐसे बोलते माई ब्रदर प्लेड बैडमिंटन, उसका मतलब कि खेल चुका था, हो गया, खत्म. बट जब आप घर से निकले तो वो उस टाइम भी खेल ही रहा था, पर क्योंकि आप उस जगह से चले गए, आपके लिए वो चीज पास्ट टेंस हो गई क्योंकि सुबह का दिन हो चुका है. बट जब आप उस सिनेरियो में थे तो वो चीज प्रेजेंट टेंस में ही हो रही थी. दैट्स व्हाई वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, समझ आया? ओके, सिट डाउन. जीआईसी बंदिया, डू यू हैव अ माइक? GIC yes बच्चे, try speaking in the mic. What is your name? Hello, good afternoon. नहीं, अभी good morning ही चल रहा है. Good morning. How are you, ma'am? I am good. How are you? What standard are you in? थोड़ा ना पीछे हो जाओ, आपकी ना थोड़ी शक्ल कट रही है. पीछे हो जाओ थोड़ा सा.
हाँ जी, हाउ आर यू? I am fine, ma'am. थोड़ा तेज बोलना बच्चे, मुझे ना आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। और क्या बोलूं? Tell me what class are you in? What class do you study in? आप कौन से क्लास में हो? Ma'am, 10th. 10th में। And what is your name? My name is Sikha. शिखा। ऑल राइट शिखा। शिखा, आपको समझ में आया? आपका आज पहला क्लास है, Yes, ma'am. तो आपको समझ आया हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या समझ नहीं आया? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, हम दोबारा रिपीट कर लेंगे जो भी समझ नहीं आया। मैम आप दोबारा बता दो। अच्छा, क्या समझ आया वो बताओ। चलो मुझे ये बताओ, आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस पता है क्या होते हैं? यस मैम। वो पता है ना? अगर मैं बोलती हूँ कि दृष्टि's ब्रदर प्लेड बैडमिंटन लास्ट मॉर्निंग और लास्ट नाइट, तो ये कौन सा टेंस है? हाँ, अगर मैं बोलूँ कि शिखा प्लेड बैडमिंटन लास्ट नाइट, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट। वेरी गुड, पास्ट टेंस है। अगर मैं बोलूँ शिखा इज प्लेइंग बैडमिंटन, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट, वेरी गुड। एंड अगर मैं बोलूँ शिखा विल प्ले बैडमिंटन टुमारो, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, वेरी गुड। सो यू नो व्हाट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब क्या होता है, अगर मैं बोलूं शिखा वॉज प्लेइंग बैडमिंटन व्हेन आई लास्ट सॉ हर, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट मैम। नो, इट इज योर, ये जो हमने अभी पढ़ा, इट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि वॉज लगा है। जहां भी आपका वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, आप सही बोल रहे हो, जहां आईएनजी फॉर्म लगता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, बट आईएनजी फॉर्म के साथ आपका वॉज भी लगाना। शिखा वॉज प्लेइंग बैडमिंटन व्हेन आई लास्ट सॉ हर, ठीक है? दैट्स व्हाई इट्स योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट। कॉन्टिन्यूअस। समझ नहीं आया? बताओ, मैं दोबारा बता दूंगी। समझ नहीं आया? नो मैम। नहीं मैम। नहीं आया समझ? अच्छा, एक काम करो, सारे बच्चे नोटबुक्स है आपके पास? आप मुझे अपनी नोटबुक्स दिखाओ एक बार। सबके पास है? ओके, ऑल राइट। तो अपने यस नोटबुक मैम। में हेडिंग डालो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये है हेडिंग। नोटबुक में हेडिंग डालो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और नीचे लिखो रूल, RULE, रूल, नियम, किसी चीज को करने का तरीका। इसीलिए नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। मैं पहले लिखा चुकी हूँ ये चीज, आप तब क्या कर रहे थे? ठीक है, रूल में लिखो सब्जेक्ट। शिखा, सब्जेक्ट पता है क्या होता है? बैठ के बता दो, सब्जेक्ट क्या होता है पता है? हाँ मैम। क्या होता है बताओ? विषय मैम। विषय। विषय वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटा ये। इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, अगर मैं अपनी बात में किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या चीज के बारे में बात कर रही हूं, अगर मैंने बोला ना कि शिखा वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूं, तो आप सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट होता है मेन कैरेक्टर, या आप जिसके बारे में बात, सब्जेक्ट होता है हीरो, आपके सेंटेंसेस का हीरो, मेन एक्टर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो,
ठीक है, समझ आया? यस और नो? शिखा, यस मैम। सब्जेक्ट समझ आया क्या होता है? यस मैम। अगर मैं बोलूं GIC बंदिया वॉज लर्निंग इंग्लिश, तो सब्जेक्ट कौन है? GIC बंदिया। वेरी गुड, यस। तो इसका रूल नोट कर, बाकी सबको GIC बंदिया समझ आया? हैंड रेस करो। पीछे वाले बच्चे को माइक देना। बच्चे, शिखा, आपका नाम क्या है? My name is Azim. अजीम, ओके। अजीम, डिड यू गेट इट? सब्जेक्ट क्या होता है? किसी का नाम है। किसी का नाम नहीं बच्चे, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बोलूं अजीम विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, तो सब्जेक्ट कौन है? अजीम है। अजीम। और अगर मैं बोलूं आई विल बी गोइंग फॉर शॉपिंग टुडे, तो सब्जेक्ट कौन है? शॉपिंग। शॉपिंग वर्ब है बच्चे। शॉपिंग आपका कोई काम है, कोई एक्शन है। सब्जेक्ट इज मी, आई विल गो टू शॉप, ठीक है। अगर मैं बोलूं यू विल गो टू द पार्क टुडे, तो सब्जेक्ट कौन है? और टुडे। पार्क टुडे नहीं बच्चे, पार्क तो आप जा रहे हो। यू यू सब्जेक्ट है, वेरी यू गुड। मैम। अब समझ आ गया? हाँ जी, गुड। अब समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच अजीम। ठीक है, चलो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर। वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है। सिंगुलर मतलब एक चीज के बारे में बात हो रही है, यू, आई या किसी पर्टिकुलर नाम, एक चीज के बारे में जब बात हो रही है वो सिंगुलर होता है और उसके लिए वॉज यूज होता है। दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में जब बात हो रही है वो प्लूरल होता है और उसके लिए वर यूज होता है। प्लस वर्ब, वर्ब इज योर एक्शन वर्ड। वर्ब का डेफिनेशन लिखो नीचे, एक्शन वर्ड, ACTION, एक्शन वर्ड्स। कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जिसमें पता लग रहा है कि सिचुएशन में क्या चीज हो रही है, वहां पे वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है। प्ले, ईट, स्लीप, वॉक, स्टडी, सारे काम है, तो यहाँ पे वर्ब यूज हो रहे हैं। ये वर्ब है, एक्शन वर्ड्स है ये। प्लेइंग वर्ब है, स्टडिंग वर्ब है, ठीक है। प्लस ING, ING मतलब सारे वर्ब्स पे ING लगा दो। प्ले का प्लेइंग बन जाएगा। हाँ जी शिखा, माइक लेना। शिखा, टेक द माइक। यस मैम। अगर मैं बोलती हूँ स्टडी, तो स्टडी का ING लगा के क्या बनेगा? स्टडिंग। स्टडिंग, वेरी गुड। अगर मैं बोल रही हूँ वॉक, वॉक वर्ब है तो वॉक का ING लगा के क्या बनेगा? वर्किंग। वॉकिंग। वर्किंग, वेरी गुड। ये क्या होती हैं? ये क्या है? हेयर। हेयर, वेरी गुड। हेयर, हेयर्स नहीं होता, ठीक है। मुझे चाहिए तुम सारे ये चीज एक बात सीख जाओ, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक। दीज आर हेयर, सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल यूज नहीं करते। हेयर्स नहीं होगा। ये क्या है? आईब्रो। आईब्राउ, इट्स नॉट आईब्रो, इट्स आईब्राउ, ठीक है। ये ऐसे रैंडम था, ये पास्ट टेंस में नहीं आता, बस मैंने बता दिया कि याद रखना, इसको हेयर्स नहीं बोलते हैं और इसको आईब्रो नहीं बोलते हैं, आईब्राउज। ये डेली चीजें यूज होती हैं तो तुम डेली मिस्टेक करते हो, ये मेरी मिस्टेक मत करना, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हमें रूल पता है, ठीक है। अब अगर मैं सेंटेंस बोलूं
शिखा, अगर मैं अब बोलूं कि शिखा वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, तो ये कौन सा टेंस है? Past. कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? शिखा। वॉज या वर्ब यूज करते हैं। शिखा सिंगुलर है, सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो हमने वॉज यूज करा। शिखा वॉज सिंगिंग। सिंग आपका वर्ब है, वर्ब प्लस आईएनजी, सिंगिंग। शिखा वॉज सिंगिंग। जहां भी वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो रही हो, वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब समझ आया? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स जिसको समझ आया। शिखा समझ आया? शिखा नहीं समझ आया तो ना बोलो बच्चे, वरना हाँ बोलो। No, ma'am. क्या समझ में आया बताओ? सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वॉज के साथ आईएनजी लगा हुआ दिख रहा है, तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है बच्चे, ठीक है। शी वॉज सिंगिंग, आई वॉज प्लेइंग, ये सारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी जहां पे लगा होता है, वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आया समझ? मैम वो कुछ कहना चाहती है आपसे। बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, बोलो फटाफट बोलो। कुछ नहीं मैम, जो अभी आपने बताया वो आ गया समझ में। आ गया समझ में? मैं पूछ लूं? यस मैम। आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। तो प्रिया वॉज स्टडिंग कौन सा टेंस है? मैम एक बार फिर से रिपीट करना। प्रिया वॉज स्टडिंग कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और प्रिया वॉज स्टडिंग में सब्जेक्ट कौन है? प्रिया। प्रिया। और वॉज क्यों लगाया हमने, वर क्यों नहीं लगाया? सिंगुलर है इसीलिए। वेरी गुड। एंड वर्ब क्या है? स्टडिंग। यस, स्टडिंग। स्टडी वर्ब है प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। प्रिया वॉज स्टडिंग Yes, इज ma'am. योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, हमने पूरा ये फॉर्म यूज करा कि नहीं करा? सब्जेक्ट वॉज प्रिया, वॉज लगाया क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब था स्टडी और आईएनजी फॉर्म। अब समझ आ गया? बताओ हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। सो प्रिया वॉज स्टडिंग इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रिया स्टडीड, जहां कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लग रही है, वो आपका पास्ट सिंपल है, ठीक है। पास्ट सिंपल तो Yes, सबको ma'am. पता था ना पहले से, ठीक है चलो ओके। अब समझ आ गया? या पीछे वाले अभी भी ऐसे ही हैंड रेस कर रहे हैं क्योंकि समझ नहीं आया? ये सेकंड रो को माइक देना। अरे इतना बड़ा क्या, इट्स नॉट अ बिग डील, Morning, बस ma'am. माइक। हाँ गुड मॉर्निंग। बताओ समझ आया? व्हाट्स योर नेम? Mohammed Afaq Hussain. Afaq Sorry? Hussain. Afaq. Afaq, right? Yes, ma'am. Okay. So Afaq was jogging in the ground yesterday is what tense? Past continue. Very good. Past continuous. Afaq was singing is what tense? Past continuous. Yes. इसमें verb क्या है? Verb is action. क्या action हो रहा है? Ma'am, Singing repeat. ना? Afaq was singing में verb क्या है? Singing, singing. Very good. And subject कौन है? Afaq. Afaq. Afaq and Shikha were playing में subject कौन है? Repeat, ma'am. Afaq and Shikha were playing में subject कौन है? Afaq.
और शिखा नहीं है सब्जेक्ट Afaq है? and Shika. वेरी गुड, यस Afaq and Shika. एंड गुड। और हमने वर क्यों यूज करा? यहाँ पे लिखा है ना, या तो वॉज यूज करते हैं या वर यूज करते हैं। हाँ, क्यों यूज करा वर? Plural. हाँ, किसने दिया आंसर? तुम्हें आता है तो तुमने माइक क्यों नहीं पकड़ा? प्लूरल था इसीलिए। और वर्ब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लेइंग था वर्ब। अब सबको समझ आ गया? अब समझ आया? अब हैंड रेस करो। अब जितनों को आया है उतने ही हैंड रेस करना। समझ आ गया? गुड। खुशबू, बच्चे यू गॉट इट? जैसी तलवारी, खुशबू गॉट इट? ओके। अब तो तुम छोड़ो, मैं कभी नहीं भूलूंगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, नींद में भी कभी मैं गलती नहीं करूंगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। नाउ डोंट डू दीज मिस्टेक्स। ओके, नाउ क्या नाम था? प्रीति नाम था? नहीं, शिखा के उधर वाला का क्या नाम था? खुशबू नहीं, क्या नाम था बच्चा आपका? सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम। Priya. हाँ, अब बताओ। Priya, yes. So Priya, since now we know what past continuous is, I want you to describe what was happening in your house when you left for school today. जब आप स्कूल के लिए आए तब आपके घर में क्या क्या हो रहा था? कौन लोग क्या क्या कर रहे थे? एंड इसको माइंड में रख के बोलना, इसको माइंड में रख के बोलना। सारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होंगे, ठीक है? क्योंकि वहां काम हो रहा था जब आप आए। चलो बताओ, व्हाट वाज हैपनिंग इन योर हाउस? कुछ भी बोल दो, कैसे भी सेंटेंसेस बना लो, वील करेक्ट द सेंटेंसेस हियर। टेल मी। My mother was in cooking. योर मदर वाज कुकिंग, ऑलराइट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? गिव मी 2 सेकंड। Mother. इसमें सब्जेक्ट मदर है। वर्ब क्या? और was क्यों यूज हुआ? Singular है इसलिए. Good, very good. Clap for her. And all of you, clap for yourselves. चलो, and उसके बाद क्या हो रहा था? Your mother was cooking, then My father was going to मुझसे पूछो job. बच्चे क्या बोलते हैं, मैं बताऊंगी। So बोलो, my father was going to his job or was leaving for work or was leaving for his job. Say it. My father was leaving for work. बोलो। My father is leaving to work. Was. My father Was. was leaving for work. My father was leaving to work. Leaving for work, काम के लिए. My father was going to work. Okay, that also works. And then उसके बाद और क्या हो रहा था? और कुछ नहीं हो रहा था? You want to add something or this is it? No, ma'am. Okay, all right. Thank you so much. Now you know past continuous में कैसे बोलते हैं? My mother was cooking. My Yes, father ma'am. was leaving for work. Got it? Okay, all right. Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चे। ओके, सो अगर हमें इसमें क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं, ये था कि हम सिंपल स्टेटमेंट्स फॉर्म करें, ठीक है? अब अगर हमें इसमें क्वेश्चंस पूछने हैं तो क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही पूछते हैं। आई वॉज, जैसे अगर हम कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं अपने बारे में तो वो होता है आई वॉज, वी यूज वॉज। बट अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है? व्हाट वॉज यू डूइंग नहीं होता, व्हाट वर यू डूइंग होता है। सिंगुलर में भी वर यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है?
What were you doing at 7 a.m. this morning? What were you? इसको नोट कर लो. Question word plus were. Note this down. Past continuous में question पूछने के लिए this is the rule. Question word plus were. Was मत लिखना. Were plus subject plus verb का ing form. Note this down. ठीक है? Now, I'll give you an example. What were you doing at 7 a.m. this morning? What is your question word? Were is were, जो हमने यहाँ पे rule पे लिखा. You is subject. What were you doing at 7 a.m.? Doing is your verb के साथ ing. Do is your verb, ing is उसका form. At 7 a.m. this morning. So, we have followed the rule here. What were you doing at 7 a.m. this morning? Okay, Khushbu, बच्चे please take the mic. Khushbu, if I ask you, what were you doing at 7 a.m. this morning, what will be your answer? I was freshen up I was 7 getting a.m. this freshened morning. up. I was getting freshened up. I was getting freshen up at 7 a.m. this morning. Very good. Clap for her. GIT. Bandiya. Clap. Good. Good. Very good. Sit down. मुझे यही बस डिफरेंस बताना था आप लोगों को. आप क्वेश्चन में वर यूज करोगे सिंगुलर के लिए, पर आप आंसर देते हुए सिंगुलर के लिए वर यूज नहीं करोगे, वॉज ही यूज करोगे. ठीक है? हाँ जी शिखा, टेक द माइक. पीछे वाले बच्चे को माइक देना. बच्चा, can you please tell me your name again? I forgot your name. I'm so sorry. जी मैम. आप मुझे अपना नाम बता सकते हो दोबारा? मोहम्मद आफा हुसैन. सॉरी, माइक को आफा थोड़ा हुसैन. सा. अफाक. आफाक. Afaq. Yes, ma'am. Okay. Afaq, can you please introduce yourself for me? मैं बताती हूँ इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बोलना है. यू नीड टू टेल मी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके हॉबीज क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, बड़ा हो के आपको क्या करना है, कौन से क्लास में हो, ये सब कुछ. चलो. My name is Mohammed Afa. ओके. My class 10th. I study in class 10th और I am in class 10th. बोलो. I study class 10th. in class 10th में. I study in class 10th. बोलो. I study class in. In class 10th. Study in in class 10. Good. Don't laugh. Class 10. प्रिया, no. हाँ जी, उसके बाद प्रिया, next is your turn by the way. चलो अफाक. उसके बाद where do you live? Jamon. I live Where in do you Jamon. live? I live in Jamon. Okay, all right. And who all are there in your family? 5. 5. Say there are 5 members in my family. हाँ बोलो. There are 5 in my 5 family. members in my family. Very good. And
Afaq, which is your favorite subject? अब अगर कोई पूछेगा how many members are in your family, तो बोलना there are 5 members in my family. ऐसे नहीं कि 5, ठीक है? ऐसे नहीं. Okay. Yes, ma'am. So Afaq, yes. Who all are there in your family? कौन कौन है family में? एक तो आप हो, और दो और कौन है? दो सिस्टर 2 पापा। sisters. Are they या आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? छोटी छोटी है, तो छोटी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड यंगर. बोलो आई हैव 2 younger sisters. और I have I have 2 younger sisters. 2 younger sister. Yes, sisters plural, दो है ना, दो plural Sisters. होता है, उसके लिए s यूज है sisters. तो अगर बड़ी होती तो आप बोलते elder sisters, छोटी है तो बोलोगे younger sisters. ठीक है? जी मैम. और कौन कौन है? चलो, एक आप हो, 2 younger sisters हैं, और कौन है? मम्मा पापा? जी. Okay, all right. ठीक है. And what does your father do? आपके पापा क्या करते हैं? ट्रक चलाते. Okay, so say that he is a truck driver. My father is a truck driver. Good. And what does your mother do? Housewife. Huh? Housewife. Okay. So the other word for housewife is homemaker. क्या होता है? Homemaker. Home. Homemaker. जी मैम. ठीक है. और अब मुझे आप बताओ कि आपको बड़ा होके क्या बनना है? What is your goal in life? हंस रहा है. हंस क्या रहे हो? कुछ तो बनना होगा, कुछ तो सोचा होगा. कौन सी क्लास में हो तुम? 10th. हाँ, 10th क्लास में तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था. हाँ, बताओ क्या बनना है? पूरा ऑन करो माइक को. मैम विदेश जाना. क्या बनना है? विदेश जाना. जाना है? क्या करना है विदेश जाके? ट्रक ड्राइविंग. वहां जाके ट्रक ड्राइवर बनना है, तो यहीं बन जाओ. जी मैम. इतनी दूर क्यों जाना है? नो मैम. अच्छा, यहाँ नहीं बनना, वहां बनना है. वहां के ट्रक अलग है. जी मैम. यस मैम. कौन से कंट्री में जाना है आपको? हाँ, कुवैत. कौन से कंट्री में जाना है? कुवैत. कुवैत. ठीक है. ओके. तो अगर आप कुवैत से लौटते हुए कुछ लाओगे अपनी फैमिली के लिए, तो उसको सोविनियर बोलेंगे. ठीक है? क्या बोलते हैं? यस मैम. सोविनियर. ओके. गुड. सिट डाउन, बैठ जाओ. चलो प्रिया, नेक्स्ट इज यू. देन वी विल वाइंड अप द सेशन. Khushbu, then we will take one session where we talk about what you do or what is your schedule, and then we will wind up the session. ठीक है बच्चे? Okay. Yes, Priya. Give me your introduction. My name is Priya. I live in Full name. Pasbeda. Whenever you give your introduction, you give your full name. My name is Priya Rajput. Okay, and? I live in Pasbeda. Okay. There are 4 members in my family. I Who have all? one younger brother. Very good, younger brother. Then? Mother होगी, father. Mother हो गई, father हो गए. ये half English, half Hindi मत बोलो. बोलो there are 4 members, me, one younger brother, my mother and my father. What does your father do? My father was a driver. My father was and he is. अभी नहीं है ड्राइवर, पहले थे. A driver. हाँ, is a driver. My क्या father चलाते is हैं? a driver. Is a driver. And your mother is a housewife. Yes, ma'am.
Okay, and what do you want to become when you grow older? What is your goal in life? कुछ नहीं. हंस क्यों रहे हो यार तुम लोग अपने गोल पे? तुम्हें यकीन नहीं है तुम बन Doctor. जाओगे? ओके, वेरी गुड. Doctor. डॉक्टर. डॉक्टर, ओके. वो कौन सा डॉक्टर? वही तो बनना है MBBS. एमबीबीएस तो बेटा डिग्री होती है जो डॉक्टर के लिए करनी पड़ेगी. कौन सा डॉक्टर बनना है? आँख का, नाक का, पेट का? कौन सा डॉक्टर बनना है? स्किन का, ब्रेन का. हार्ट का, ब्रेन का? क्या बोलते हो ब्रेन उसको? का. न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट. ठीक है. हाँ जी, ओके. Yes, ma'am. बैठ जाओ. सिट डाउन. यस, सिट डाउन. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चे. चलो खुशबू, we'll continue with the activity. What you explain me about your schedule, and then we will wind up the session. Start. I am wake up at You 6. wake up. I am ne. You wake up. I wake up at 6. Then I am freshen up. You get freshened up. Then I get freshen up and Yes. Then. Hmm. study. And study. All right. Then I take my breakfast. Breakfast. It's not breakfast. It's breakfast. Say it again. Then I take my breakfast. Very good. Then I am ready. Then you For get ready. school. Don't use am. Am कहीं नहीं आएगा आपके sentences में. Say then I get ready for school. Then I get ready for school. Yes. Then I take virtual classes in You school. take virtual classes. Very good. Then you go back home. What you do after you go back home? Then I'm go back home and Then you go eat back my home. Don't lunch. use am. You go back home and you eat your lunch. Then I take a short nap. you take a short nap. Very good. Then Then I am going. Then I go for very playing good. badminton. Very good. Then you go to play badminton, or for playing badminton also works. Yes. Very good. Then after come back home, After you come back am home. you After coming back home. after coming back home, I use my phone. You use your phone. Okay. Then I study. Then you study. Okay. Very good. After that. Then I take my dinner. Then you have your dinner or take your dinner. All right. Okay. Then I sleep. Sleep. Okay. All right. Very good. Just don't use am. Rest the tenses were correct and the statements were correct. Very good. And Khushbu, what do you want to become? What is your goal in life? I want to become a teacher. You want to become a teacher. Okay. What subject you want to teach? Science. Science. All right. Okay, Khushbu, sit down. Thank you so much. All right, guys. Today we learned about past continuous. ठीक है? कल हम इसको फिर से practice करेंगे. We'll talk about how was the day and what was happening when you leave your house, etc. All these activities, and we will start with a new chapter tomorrow. ठीक है? All right. Bye bye. Good afternoon. Bye, Priya.